بٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون سڑکوں پر سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی گرفتاری کے خلاف آج لاہور میں احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ حکومت پنجاب نے احتجاج کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ نون لیگ نے 12 اکتوبر سے 4 دسمبر تک ملکی جلسوں کا اعلان بھی کر رکھا ہے۔ مسلم لیگ نون نے اپنی اسٹریٹ پاور شو کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پارٹی صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی گرفتاری کے خلاف کل لاہور میں احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ حکومت پنجاب نے نون لیگ سمیت اپوزیشن جماعتوں کو احتجاجی سرگرمیوں کی اجازت دے دی، تاہم اداروں اور ملکی مفاد کے خلاف تقاریر کی اجازت نہیں ہوگی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ قانون توڑنے پر مقدمات اور گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے ملک گیر جلسوں کا اعلان بھی کیا گیا۔ نون لیگ 12 اکتوبر سے 4 دسمبر تک جلسے اور مظاہرے کرے گی۔ ڈویژن سطح کے اوپر کنونشنز کا پروگرام بنایا گیا ہے 12 اکتوبر سے لے کے 4 دسمبر تک۔ کراچی میں جیسے میں نے کہا 12 اکتوبر کو ہے، اس کے بعد 15 اکتوبر کو راولپنڈی میں، 19 اکتوبر کو مالاکنڈ میں، 22 اکتوبر کو اسلام آباد، 26 اکتوبر کو مظفر گڑھ، 29 اکتوبر کو نواب شاہ، 30 اکتوبر کو عمر کوٹ، 2 نومبر کو سرگودا میں، 6 نومبر کو فیصل آباد میں، 10 نومبر کو ساہیوال میں، 23 نومبر کو ملتان میں، 26 نومبر کو ہزارہ میں، 30 نومبر کو بھاولپور میں، 4 دسمبر کو پشاور میں۔ مریم نواز 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں جلسہ کریں گی۔ رہنما نون لیگ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کا کہنا ہے سازشوں کا دور ختم ہو گیا، 16 اکتوبر کے بعد سب کو لگ پتہ جائے گا۔ 12 کو یوم سیاہ ہے، 11 کو کوئٹہ میں جلسہ ہے، 16 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی گجرانوالہ سے ابتدا ہوگی ایک آزاد پاکستان کی، ایک آزاد آئین کی ابتدا ہوگی اور ووٹ کی عزت کی ابتدا ہوگی۔ ارکان اسمبلی کو جلسے کی تیاریوں کا ٹاسک دے دیا گیا، جبکہ لیگی رہنما رانا ثناءاللہ مریم نواز کی گرفتاری کا خدشہ بھی ظاہر کر چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی پارٹی کے نوجوان رہنماؤں سے جاتی عمرہ میں ملاقات ہوئی۔ مریم نواز نے آئندہ آنے والے مہینوں میں احتجاجی مہم کے لیے پارٹی کے نوجوانوں کو متحرک کرنے کے لیے لاہے عمل تشکیل دیا ہے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ ہمارے رہنماؤں نے بہت قربانیاں دی ہیں، اب نوجوانوں کی باری ہے کہ وہ اس تحریک میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کی گرفتاری کی صورت میں مسلم لیگ نون کا نوجوان پارٹی کے علم کو گرنے نہیں دے گا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، عوام آج میاں نواز شریف کے دور کو یاد کر رہے ہیں۔ اور نون لیگ کے احتجاج کے معاملے پر ضلع انتظامیہ اور مسلم لیگ نون کے درمیان معاملہ طے پا گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل خواجہ عمران نذیر کی قیادت میں وفد نے کمشنر لاہور سے ملاقات کی۔ آج ضلع انتظامیہ کے افسران نے جو ہے وہ رابطہ ہم سے کیا تھا باقاعدہ، اور مسلم لیگ نون کا یہ 4 رکنی وفد جو ہے، جس میں میرے ساتھ کرنل مبشر جاوید صاحب، سید تسلیم شاہ صاحب، میاں طارق صاحب شامل ہیں، ہم آج ڈی سی صاحب کے آفس یہاں پہنچے۔ یہاں پر کمشنر لاہور، سی سی پی او لاہور، ڈی آئی جی آپریشن لاہور، ڈی سی لاہور اور ایس ایس پی آپریشنز لاہور جو ہیں ان سے ہماری اور دیگر افسران سے ہماری بات چیت طے ہوئی۔ ہم نے ان کو باقاعدہ احتجاج کا اطلاع نامہ جو ہے وہ دے دیا، اور ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ یہ جمہوری حکومت ہونے کا دعوے دار ہے، تو اس جمہوری حکومت کے دعوے پہ آئین اور قانون کے تحت پرامن احتجاج کرنا اپوزیشن کا آئینی حق ہے۔ اپوزیشن کے متحرک ہونے پر حکومت پارٹی رہنماؤں کو میدان میں اتارنے کی تیاریاں کر چکی ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک سے نمٹنے کی حکمت عملی طے کی گئی۔ ملک میں سیاسی پارہ ہائی ہو گیا، اپوزیشن کے متحرک ہونے پر حکومتی صفوں میں بھی ہلچل مچ گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ترجمانوں اور رہنماؤں کی اہم بیٹھک ہوئی۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور گورنر پنجاب بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی طے کی گئی۔ اجلاس میں اپوزیشن کے مقابلے میں حکومتی بیانیے اور نواز شریف کی واپسی سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں کھلاڑیوں کو اپوزیشن رہنماؤں کو بے نقاب کرنے کا مشن دے دیا گیا۔ اجلاس میں لیگی قائد کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نواز شریف اپنے بچوں کو لندن میں بٹھا کر عوام کو سڑکوں پر لانا چاہتے ہیں، ان کے بچے آرام کریں اور عوام سڑکوں پر آئیں۔ یہ کیسا انقلاب ہے؟ قوم اداروں کے ساتھ کھڑی ہے، متحد ہو کر بھارتی سازش کو ناکام بنائیں گے۔
हजरत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात के दौरान लगने वाली दूध की सबिल के इंतजामात मुकम्मल नहीं हो सके हैं। पार्किंग स्टैंड ठेकेदार की जानिब से जगह खाली न करने पर सबिल के इंतजामात अभी तक नामुकम्मल हैं। उर्स तकरीबात की मुनासबत से दाता दरबार के सामने रवायती और कदीमी दूध की सबील लगाई जाती है, जहां पर शीर फरोश हजारों मन दूध ज़ायरीन और अकीदतमंदों में तकसीम करते हैं। उर्स तकरीबात में 3 रोज बाकी होने के बावजूद सबील इंतजामात को पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया जा सका, जिसकी वजह से मुंतजिमीन को मुश्किलात का सामना है। चौधरी मंजूर गुज्जर कहते हैं कि मुतअद्दिद बार दरखास्तों के बावजूद पार्किंग स्टैंड खाली नहीं कराया गया। अब इंतजामिया से भी उस पर दरख्वास्त की है, एडमिनिस्ट्रेटर साहब से भी और मैनेजर साहबान से भी, वो कह रहे हैं इंशाल्लाह खाली करवा देते हैं, जैसे वो खाली होता काम शुरू। दूसरी जानिब डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी कहते हैं कि उर्स के दौरान दूध की सबील लगेगी। उर्स के मौका पर जो गुज्जर बरादरी है, जो शीर फरोशान हैं, जो गवाले हैं, वो अपना दूध जो जानवरों का होता है उर्स के इन 3 दिनों में यहाँ पेश करते हैं और हज़ारों लीटर दूध यहाँ आता है। और अब इसको मॉडिफाई किया गया है, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक दूध पेश किया जाता है। दूध सबील इंतजामिया की जानिब से शीर फरोशों को दूध लाने के दावतनामे अरसाल कर दिए गए हैं। ज़ायरीन को पंजाब फूड अथॉरिटी से चेक कराकर हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक दूध तकसीम किया जाएगा। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। हजरत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात से कबल जामिया मस्जिद दाता दरबार में सह रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। हजरत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर रोशनी डाली गई। बरे सगीर की मारूफ रूहानी शख्सियत हजरत दातागंज रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात की मुनासबत से रियासत मदीना और सैयद हजवेरी की तालीमात पर सहरोजा आलमी कॉन्फ्रेंस मुनकिद हुई, जिसकी सदारत सूबाई वजीर औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब सैयद सईदुल हसन शाह ने की। कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर इरशाद अहमद, डीजी मजहबी अमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी, मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह, सीनियर सहाफी सजाद मीर और एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार खालिद महमूद सिंधु समेत दीगर शरीक हुए। सूबाई वजीर औकाफ सैयद सईदुल हसन शाह ने कहा कि खित्ते में दीन इस्लाम का फरोग औलिया इकराम की तालीमात की वजह से हुआ, जिसमें दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने अहम किरदार अदा किया। अपने कौलो अमल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा लोगों के सामने पेश किया। ये इन्हीं बुजुर्गान दीन की बेलौस और मुखलिसाना कोशिशों का नतीजा था कि बरसगीर में इतनी बड़ी तादाद में लोग मुशर्रफ इस्लाम हुए। कासिम अली शाह और डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने कहा कि औलिया इकराम ने दीन इस्लाम की खातिर अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी थीं। जिनकी भेदियां कायम है, जिनकी निशानियां कायम है, जिनकी नाम की निस्बतों से इज्जतें मिलती हैं, जिंदा वो है जो गफलत को खत्म करते हैं, जिनकी कश्फुल माजूब 1000 साल बाद भी फैज देती है। हजरत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत, आपके अहवाल, आपके अफकार और आपका फ़िक्र व फ़लसफ़ा, इससे जिस कदर इस खित्ते के लोगों ने इक्तसाब फैज़ किया, उसी कदर मैं जब देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि अहालियान मगरिब भी हज़रत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उलूम के उसी कदर शहदा है। सहरोजा आलमी कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वाले मेहमानों को महकमा औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब की जानिब से शीट्स पेश की गयी। कैमरामैन सलमान अलवी और नासिर मसूद के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। IG पंजाब की ज़ेर-ए-सदारत वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस संगीन जराइम, चहलम हजरत इमाम हुसैन, रायबंड इज्तिमा और उर्स हजरत दातागंज बख्श के सिक्योरिटी इंतजामात बारे हिदायत जारी की गई। चहलम इमाम हुसैन के मौके पर 35,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकार, 4,010 पुलिस कौमी रजाकार और 8,657 वॉलंटियर सिक्योरिटी फ्राइज सर अंजाम देंगे। हजरत इमाम हुसैन के चहलम के मौके पर सूबे भर में 393 जुलूस, 697 मजालिस बर्पा होंगी। IG पंजाब इनाम गनी का कहना था कि जुलूसों के रास्ते में आने वाली बड़ी इमारतों की छतों पर स्नाइपर्स को लाजमी तैनात किया जाए। हजरत उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की सिक्योरिटी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और दस्तयाब वसाइल का मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। अहम शाहराहों पर आए रोज ख्वातीन के साथ ज्यादती और डकैती के वाकयात पेश आने लगे हैं। IG पंजाब का शाहराहों को महफूज बनाने के लिए हर पोस्ट पर पेट्रोलिंग एरिया 10 से 12 किलोमीटर तक बढ़ाने का हुक्म सामने आया है। एरिया बढ़ाने से पेट्रोलिंग पुलिस 10,500 से बढ़कर 14,000 किलोमीटर का रकबा कवर करेगी।
अहम शाहराहों पर खवातीन के साथ ज्यादती और डकैती के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है। IG पंजाब ने शाहराहों को महफूज बनाने के लिए पेट्रोलिंग एरिया बढ़ाने का हुक्म दे दिया है। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की सूबा भर में 354 चौकियां हैं जो कि 10,500 किलोमीटर एरिया में रोजाना पेट्रोलिंग करती हैं। हर चौकी का 10 से 12 किलोमीटर का सर्कल बढ़ा दिया गया है। एहलकार अब 14,100 किलोमीटर से ज्यादा की शाहराहों पर पेट्रोलिंग करेंगे। IG पंजाब इनाम गनी का कहना है कि पेट्रोलिंग एरिया बढ़ाने का मकसद चोरी और डकैती को रोकना है ताकि शहरी दिन रात सफर करते वक्त अपने आप को महफूज तस्वुर करें। उन्होंने कहा कि पेट्रोलिंग पुलिस मशकूक गाड़ियों और मशकूक अफराद पर खसूसी नजर रखे। कोई भी मदद के लिए पुकारे तो फौरी पहुंचे। IG पंजाब ने हदायत जारी कर दी हैं। बुज़दार सरकार का तरजीही मंसूबा फिरदौस मार्केट अंडरपास LDA खजाने पर भारी पड़ने लगा है। LDA खजाने में 35 करोड़ रह चुके हैं। LDA ने 6 अक्टूबर को अराजी की नीलामी से आमदन पर इन्हिसार शुरू कर दिया। बुज़दार सरकार की ख्वाहिश पर LDA ने ऑन सोर्स 1 अरब 72 करोड़ अंडरपास के लिए मुख्तस किए थे। ज़राए के मुताबिक LDA खजाने में तनख्वाहें और अखराजात की मद में 35 करोड़ रह गए। फिरदौस मार्केट के लिए खतीर रकम LDA खजाने पर भारी पड़ गई। फाइनेंस ज़राए के मुताबिक LDA अफसरान और मुलाजमीन की माहाना तनख्वाह 12 करोड़ से जायद है। बिल, बिजली, अद्वियात और पेट्रोल डीजल पर भी 10 करोड़ से जायद माहाना अखराजात हैं। LDA अफसरान के शाहाना दफातर, अलाउंसेस और गाड़ियों के अखराजात का बोझ भी खजाने पर है। LDA कमर्शियल पॉलिसी को फाल न करने से खजाने को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। एवेन्यू 1 और LDA सिटी के कमर्शियल प्लॉट्स का कमर्शियल सेल प्लान नहीं बनाया जा सका। LDA का एरिना प्रोजेक्ट रेवेन्यू देने की बजाय खजाने पर बोझ बन गया। ज़राए के मुताबिक मौजूदा हालात में LDA कोई नया मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने की पोजीशन में नहीं। बुज़दार सरकार की ख्वाहिशात अब सरकार को अपने खजाने से पूरी करना होंगी। LDA शोबा फाइनेंस ने खजाने की बिगड़ती सूरत हाल से DG को आगाह कर दिया है। LDA खजाने को बढ़ाने के लिए 6 अक्टूबर को प्लॉटों का सेल मेला लगाया जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात से कबल तब्दीली सरकार के अपने MNAs के हलकों में होगी फंड्स की बरसात। कौमी अरकान असम्बली के हलकों के लिए मजीद 7 अरब 50 करोड़ रुपए का पैकेज तैयार करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बुज़दार सरकार हुकूमती अरकान असम्बली को नवाजने के लिए एक बार फिर खजाने का मुंह खोलने जा रही है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यूनिटी प्रोग्राम के बाद अब 7 अरब रुपए का MNA पैकेज लाया जा रहा है। ज़राए ने बताया है कि ज़िले हुकूमतों की जानिब से अरकान असम्बली के हलकों में तरक्याती कामों की तफसील पंजाब हुकूमत को अरसाल कर दी गई है। ज़राए ने बताया कि तहरीक इंसाफ के हर रुकन कौमी असम्बली को मजीद 10 करोड़ फी हल्का दिए जाएंगे। दूसरी जानिब PND बोर्ड ने ईवान वज़ीर आला से MNAs को इजाफी फंड्स देने की मंजूरी मांग ली है। कायद-ए-आज़म सोलर पावर लिमिटेड पर कर्जों का बोझ पड़ने लगा है। बैंक ऑफ पंजाब ने कायद-ए-आज़म सोलर पावर लिमिटेड से अरबों के बकाया चार्ज मांग लिए हैं। साबिक दौरे हुकूमत में सोलर पैनल की तनसीब के लिए अलग से कंपनी बनाई गई। कंपनी का नाम कायद-ए-आज़म सोलर पावर लिमिटेड रखा गया। कंपनी को चलाने के लिए बैंक ऑफ पंजाब से कर्ज लिया गया। कर्ज का हजम 11 अरब रुपए से जायद था। ज़राए का कहना है कि अदम अदायगी और कंपनी को होने वाले खसारे की वजह से ताहाल अभी मुकम्मल कर्ज अदा नहीं किया जा सका। जायद की वाजिबुल अदा रकम मांग ली है। हुकाम के मुताबिक रकम की अदायगी के लिए मामला काबीना को अरसाल किया गया है। हतमी फैसले के बाद वाजिबुल अदा रकम अदा कर दी जाएगी। LWMC ने अंदरून लाहौर को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। चौक मस्ती लोहारी गेट समेत दीगर गलियां और चौराहे गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। कूड़ा करकट न उठाए जाने से अहले इलाका को मुश्किलात का सामना है। LWMC के अमले ने अंदरून लाहौर को नज़रअंदाज कर दिया। अंदरून लाहौर की गलियों में जा बजा कूड़े के ढेर नजर आते हैं। चौकमती, लोहारी गेट, मोची गेट और शालमी मार्केट समेत दीगर मोहल्लों में गंदगी के ढेर लग गए। अंदरून लाहौर के रिहायशी हुकूमत की कारकर्दगी से नाला दिखाई दिए। यहाँ ये गंद नहीं उठाया जाता। जब ऊपर राब्ता करते हैं, मुतलका महकमे से राब्ता करते हैं, वो कहते हैं जी कि हमारे पास बंदे नहीं हैं या हमारी गाड़ियाँ खराब हैं। जिस वक्त से ये मौजूदा हुकूमत आई है, इस वक्त ये लाहौर जो है ये 53 तैयार हुए हुए हैं। शहरियों का कहना था कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अमले ने अंदरून लाहौर काम करना छोड़ दिया है। हफ्ते में एक बार बमुश्किल चक्कर लगाते हैं। हुकूमत इन पर रहम करे और अंदरून लाहौर की गलियों को साफ कराया जाए। लाहौरी गेट समेत दीगर मोहल्लों के रिहायशियों ने कूड़ा करकट उठाने का मुतालबा कर दिया। कैमरा मैन अली नुमान के हमरा ज़ीशान सफदर, सिटी 42। कोरोना खदशात की मौजूदगी में SOPs के साथ बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद पर सवालिया निशान उठ गया है। SOPs पर अमल दरामद न होने से इंतखाबी मुहिम और वोटिंग समेत दीगर अमूर मुतासिर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुनासिब फैसले के लिए हुकूमत से रुजू कर लिया।
बल्दियाती इंतखाबात पर भी कोरोना के साए मंडलाने लगे। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार है, लेकिन कोरोना ने खौफ की दीवार खड़ी कर दी है। हल्का बंदियों की फहरिस्तों से लेकर वोटिंग तक SOPs क्या होंगे, इलेक्शन कमीशन परेशान हो गया। जराये का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने कोरोना के खदशात के पेश नजर पंजाब हुकूमत को मरासला लिख दिया है कि हल्का बंदियों की फहरिस्तें दफातर में आवेजा करने के बाद शहरियों का रश पड़ेगा। मौजूदा कोरोना की सूरत हाल में इसको कैसे हैंडल किया जाए, इस मामले को नेशनल कमांड एंड कंट्रोल में भी उठाया जाए ताकि वबा के सद्देबाब और इलेक्शन के इनेकाद से मुतालिक मुनासिब हिकमत अमली बनाई जा सके। पंजाब फूड अथॉरिटी के 3000 मुलाजमीन के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान। मुकाबले का इम्तिहान पास करने के बावजूद अफसरान और मुलाजमीन 9 सालों में मुस्तकिल नहीं हो सके हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी के नाम से कौन वाकिफ नहीं। इस अथॉरिटी की टीमें दिन रात गैर मयारी खुराक तैयार करने और बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। सितम ज़रीफी ये है कि फूड अथॉरिटी के 3000 मुलाजमीन रिस्क पर काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ मुकाबला जाती इम्तिहानात देकर भर्ती होने वाले अफसरान और मुलाजमीन गुज़िश्ता नहीं हो पाए। तकलीफ यही हुए दो हुकूमत अब की रही है, जिससे न कोई कमेटी बनी और न ही कोई पेशरफ्त हुई। 24 घंटे काम करने वाली अथॉरिटी के मुलाजमीन आज भी अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान है। कस्टम्स एंड स्मगलिंग की बड़ी कार्रवाई। कोयटा से 4 करोड़ रुपए से जायद मालियत के स्मगल शुदा खुश्क मेवाजात लेकर आने वाला ट्रक पकड़ लिया गया है। कस्टम्स एंड स्मगलिंग की टीम ने कलेक्टर कस्टम्स बासित मकसूद अब्बासी की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की। कोयटा से आने वाले बिस्मिल्लाह 786 गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के ट्रक को तहवील में ले लिया गया। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक ट्रक से बरामद होने वाले स्मगल शुदा खुश्क मेवाजात की मालियत 4 करोड़ रुपए से जायद है। ट्रक में अशखार, बादाम, पिस्ता और किशमिश की भारी खेप बरामद हुई है। LDA अफसरान और नेस्पाक की जानिब से मनपसंद ठेकेदारों को नवाजने के केस में अहम मोड़। नैब ने गुज़िश्ता 12 सालों में लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेने वाली तामीराती कंपनीज की प्री क्वालिफिकेशन का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया है। नैब ने रिकॉर्ड फराहमी के लिए DG LDA को मरासला जारी किया है। मरासले के मुताबिक 2008 से अब तक मेगा प्रोजेक्ट्स की प्री क्वालिफिकेशन का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश किया जाए। मरासले के मुताबिक कंपनियों की परफॉर्मेंस और एवेल्युएशन का तरीकाकार और रिकॉर्ड भी पेश किया जाए। तमाम कंपनीज को प्री क्वालिफिकेशन जारी करने का रिकॉर्ड भी पेश किया जाए। मरासले के मुताबिक मुख्तलिफ कंपनियों के ज्वाइंट वेंचर्स के तहत काम करने पर PEC के रूल्स भी पेश करें। नैब ने LGA को 2 अरब और उससे जायद के प्रोजेक्ट्स पर फोकस करने की हिदायत की है। गुज़श्ता 12 सालों में अंडरपासेस, फ्लाईओवर समेत तमाम प्रोजेक्ट्स का रिकॉर्ड तलब किया है। नैब ने LGA से गुज़श्ता 12 सालों में प्री क्वालिफिकेशन डिस्क्वालीफाई होने वाली कंपनियों का रिकॉर्ड भी तलब किया है। नैब ने LGA अफसर को जाती हैसियत में पेश होकर रिकॉर्ड देने की हिदायत की है। एहतसाब अदालत का LDA के इंजीनियर इसरार सईद का नैब को मजीद रिमांड देने से इनकार। अदालत ने मुल्जिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। नैब ने LDA के इंजीनियर गंदा नाला LOS की तामीर में बेज़ाब्तगियां करने पर हिरासत में लिया था। अदालत में इसरार सईद को रिमांड खत्म होने पर पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्जिम बेज़ाब्तगियों में मुलव्वस है, उससे तफ्तीश अभी करनी है। उस पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर से मुख्तलिफ सवालात किए। नैब का तफ्तीशी अफसर अदालत को मुतमईन ना कर सका। अदालत ने मुल्जिम का नैब को मजीद रिमांड देने से इनकार करते हुए 14 रोज के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। स्टेट की जानिब से लाहौर चैम्बर के नौमुंतखब सदर मियां तारिक मिसबा और एग्जेक्टिव कमेटी मेंबर काशिफ इमरान बशीर के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। वाइस चेयरमैन वजीर आला शिकायत सेल नासिर सलमान, सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मलिक इमानत समेत ताजिर कायदीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। PC होटल में ताजिर कायदीन बाबर अली खान शबीर लभा की जानिब से मुनक्किदा तकरीब में नौमुंतखब सदर लाहौर चैम्बर मियां तारिक मिसबा, नौमुंतखब एग्जेक्टिव कमेटी मेंबर इमरान बशीर, साबिक सदर सीनियर रहनुमा फाउंडर्स ग्रुप शेख आसिफ, सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मलिक इमानत मजहर अमीन बट, वाइस चेयरमैन शिकायत सेल वजीर आला नासिर सलमान, काशिफ अनवर, वकार अहमद मियां जाहिद जावेद, मलिक उस्मान, मलिक फारूक हफीज, आसिफ बट और चौधरी महमूद असलम समेत दीगर ताजिर रहनुमा भी शरीक हुए। GT रोड स्वामी नगर में उम्मीदवार बराए मेंबर पंजाब बार काउंसिल मोहम्मद अहमद कयूम की हिमायत में तकरीब का इनेकाद किया गया। वकला की जानिब से भरपूर हिमायत का ऐलान किया गया। हसीब अली कुदूसी एडवोकेट और साकिब अली कुदूसी एडवोकेट की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। लीगी रहनुमा MPA चौधरी शहबाज, नदीम अफजल भट्टी, चौधरी हफीज, सज्जाद भिंडर, खुरम मीर, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद उमर भट्टी, ख्वाजा अनवारुल हक समेत दीगर वकला तकरीब में शरीक हुए। सदर फर्नीचर मार्केट रियाज मुगल की वालिदा के इसारे सवाब के लिए महफिल हमदो नात का एहतमाम किया गया। मरहूमा के बुलंद दराजात के लिए दुआए मगफिरत की गई।
महफिल हमद व नात में मेंबर सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा, जनरल सेक्रेटरी महर वाजिद अजीम, चौधरी लियाकत अली, जुल्फकार नंबरदार, तारिक जट महर शेराज, सरफराज वड़ाइच समेत फर्नीचर मार्केट के ओहदेदारान और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मलिक नदीम अब्बास बारा ने कहा कि माँ की दुआएं बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह सबकी माँ को सलामत रखे और पसमानदिगान के दराजात बुलंद करे। लाहौर की मशहूर मजहबी शख्सियत और सूफी बुजुर्ग हजरत हाफिज सैयद शमसुद्दीन के 419वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो गया है। GOR1 में मौजूद उनके मज़ार को गद्दी नशीन पीर अब्दुल रहमान कादरी ने ज़ायरीन के हमरा गुस्ल दिया। सैयद शमसुद्दीन का 419वां 3 रोज़ा उर्स GOR1 में शुरू हो गया है। उर्स की तकरीबात का बाकायदा आगाज गुस्ल की रस्म से हुआ। दरबार के गद्दी नशीन पीर अब्दुल रहमान कादरी शमसी ने मज़ार को गुस्ल दिया। इस मौका पर उन्होंने बताया कि 3 रोज़ा तकरीबात में पहले रोज गुस्ल और चादर पोशी करवाई जाती है, दूसरे रोज कुरान खानी और नात खानी का एहतमाम किया जाता है, जबकि तीसरे रोज महफिल समा और इख्तितामी दुआ करवाई जाती है। 3 दिन तीनों वक्त लंगर का एहतमाम होगा। शरीयत की पाबंदी की जाती है। पाकिस्तान के तूलो अर्ज से ज़ायरीन आते हैं। उर्स की तकरीबात के पहले रोज ज़ायरीन की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। ज़ायरीन अपनी अकीदत का इजहार करने के लिए दरबार पर हाजिरी में मसरूफ रहे। यहाँ पे कारी शम साहब का उर्स है और यहाँ पे हर साल लोग आते हैं, अपनी दुआएं लेके आते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं। दिल को तस्कीन होती है। बुजुर्गान वली अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी देने से तो दिल मुनव्वर होते हैं। उर्स का आगाज होते ही मिठाइयों और खाने पीने के स्टॉल समेत बच्चों के खिलौने की दुकानें भी सज गईं। दूर दराज से आए ज़ायरीन उर्स की तकरीबात में शिरकत के लिए पुरजोश दिखाई दिए। उर्स की तकरीबात आइंदा 2 रोज तक जारी रहेंगी। कैमरामैन अली नुमान के हमरा जिशान सफदर, सिटी 42। Amazon FBA पाकिस्तान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ई-कॉमर्स के ज़ेरे एहतमाम लिबर्टी में मीडिया ब्रीफिंग, बैरून मुल्क ऑनलाइन कमाई करने से मुतालिक आगाही फराहम की गई। ब्रीफिंग में Amazon FBA इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर के CEO अजीम सत्तार ने मीडिया और अवाम को घर बैठे कमाई के गुर सिखाने के लिए खुसूसी ट्रेनिंग का ऐलान किया। अजीम सत्तार का कहना था कि Amazon दुनिया भर का तेजी से तरक्की करने वाला इदारा है जो कि दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक में काम कर रहा है। एक ऐसे बिजनेस मॉडल्स हैं जो कि जॉब्स वाले और जॉबलेस पीपल विद द सीनियर सिटीजन्स और जो हाउस वाइफ्स हैं और स्पेशली जो डिसेबल पीपल हैं उन सब के लिए एक कामयाब टेस्टेड सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल ट्रेनिंग्स मुतारिफ करवा रहे हैं। उनका कहना था कि कोरोना जैसी मोहलिक वबा के बायस लाखों लोग बेरोजगार होकर घर बैठ गए हैं, कुछ ने अपनी नौकरियां खो दी। उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल से निमटने के लिए वो ऐसे लोगों को Amazon और एक बे पर कारोबार के न सिर्फ गुर सिखाएंगे बल्कि उन्हें तरबियत भी फराहम करेंगे। पाकिस्तान में सबसे बड़ा और तेज़ी से तरक्की करने वाला कारोबार Amazon और eBay जैसे ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म्स जो कि 200 से ज़ायद ममालिक में ऑलरेडी एक कामयाब बिजनेस मॉडल के साथ एक सक्सेसफुल और बहुत सारे बड़े सेलिंग गोल्स और बहुत सारे बड़े रेवेन्यूज़ को फुलफिल कर चुके हैं। उनका कहना था कि Amazon और एक वे पर काम करना नहायत आसान है। FBA इंग्लैंड, फॉर्म और अमेरिका जैसे मुल्क में अकाउंट्स बनाकर पाकिस्तानियों के रोजगार को मजीद बढ़ाएंगे। डायरेक्टर USA मोहम्मद अदरीस ने FBA का तरीका भी बताया। मुझे वोमेंस का एक था कि हमारे जो हाउस वाइफ्स हैं स्पेशली इफ़ दे वांट द फ्री ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग शुड बी फ्री, और अगर वो उससे प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना चाहें तो वी ऑफर 25% डिस्काउंट to the housewives plus disabled people, and at the same time we have disabled what is the third one, and senior citizens. डॉक्टर मोहम्मद अदरीस ने कहा कि खुसूसी अफराद, बुजुर्गों और जिस्मानी अज़ा से महरूम अफराद को खुसूसी रियायत दी जाएगी। दुनिया भर में अक्टूबर के महीने को खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ शऊर बेदार करने के तौर पर मनाया जाता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में आज भी इस मर्ज पर बात करना नागवार समझा जाता है, जिसकी वजह से ख्वातीन की बड़ी तादाद मौत के मुंह में चली जाती है।
تحقیق کے مطابق پاکستان میں ہر سال تقریباً 40,000 خواتین چھاتی کے سرطان میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ پاکستانی اور بھارتی خواتین میں چھاتی کے سرطان کی شرح ایشیا میں سب سے زیادہ ہے۔ یہاں ہر 9 میں سے ایک خاتون کو اس مرض کا خطرہ لاحق ہے۔ بالکل بھی اس معاملے میں تو بالکل بھی اویئرنیس نہیں دی جاتی ہے، کیونکہ یہ فیمیلز کا مسئلہ ہے، تو اس میں بہت زیادہ شائع فیل کیا جاتا ہے، اس بارے میں کوئی اویئرنیس نہیں دی جاتی۔ جہاں تک عموماً پاکستان کی بات ہے تو پاکستان کے اندر اس چیز کی اویئرنیس زیادہ تر نہیں ہے، ایون کہ خواتین خود بھی نہیں جانتے۔ ڈاکٹرز کے مطابق پہلی اسٹیج پر مریض کے تندرست ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اگر بیماری کی شدت چوتھے یعنی آخری مرحلے میں داخل ہو جائے تو پھر جان بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ چھاتی کے سرطان کی بہت سی وجوہات میں خواتین کا بچوں کو اپنا دودھ نہ پلانا، غیر متوازن خوراک، نامناسب ورزش، تاخیر سے شادیاں اور غیر صحت مندانہ طرز زندگی شامل ہے۔ بہترین علاج ہے، سرکاری ہسپتالوں میں جگہ جگہ بریسٹ کلینک بنے ہوئے ہیں، حکومت نے ابھی ایپ لانچ کی ہے، سہولات ساری ہیں، کمی صرف اویئرنیس کی ہے، اس بات کو سمجھنے کی ہے کہ آپ نے اپنی چھاتی کا معائنہ خود بھی کرنا ہے اور اگر کچھ محسوس ہوئے تو آ کے دکھانا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ خواتین کو ہر سال کلینیکل بریسٹ معائنہ کرانا چاہیے۔ پاکستان میں چھاتی کا سرطان ہر عمر کی عورت میں پایا جاتا ہے۔ کیمرامین احسن علی کے ساتھ سعدیہ خان، سٹی 42۔ کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ سیکنڈ 11 قومی T20 ٹورنامنٹ میں سندھ اور صدرن پنجاب نے اپنے میچز جیت لیے۔ سیکنڈ 11 قومی T20 ٹورنامنٹ کے میچز قذافی اسٹیڈیم میں جاری ہیں۔ پہلے میچ میں صدرن پنجاب نے ناردرن کو 7 وکٹوں سے شکست دی۔ ناردرن نے پہلے کھیلتے ہوئے 147 رنز بنائے۔ جواب میں صدرن پنجاب نے 3 وکٹوں کے نقصان پر 148 رنز بنا کر میچ میں کامیابی حاصل کر لی۔ دوسرے میچ میں سندھ نے بلوچستان کو 5 وکٹوں سے شکست دی۔ فاتح ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 5 وکٹوں کے نقصان پر 163 رنز بنائے۔ دوسرے میچ میں سندھ نے بلوچستان کو 5 وکٹوں سے شکست دی۔ بلوچستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 5 وکٹوں کے نقصان پر 163 رنز بنائے۔ عبدالوحید 73، عظیم گھمن 34 اور ایاز تصور 27 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ جواب میں سندھ نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 164 رنز بنا کر کامیابی حاصل کی۔ حسن محسن 71، سعد علی 33 اور عماد عالم 23 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ٹورنامنٹ میں ہفتے کے روز 2 مزید میچز کھیلے جائیں گے۔ کیمرامین زاہد شفیع کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا